Our next topic is dictatorship in Europe. Dictatorship in Europe is our second topic of today's lecture, right? ये भी इंटरवार ईयर्स ही है, ठीक है। थोड़ा हम इसको मजीद डेप्थ में जाके देख रहे हैं इंटरवार ईयर्स को, ठीक है। क्रिटिकल चेंजेस तो हमने देखे ना वर्ल्ड वार वन के बाद, जो 4 क्रिटिकल चेंजेस थे, ठीक है। तो अब क्या होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, वंस अगेन जो यूरोपियन सोसाइटीज थी या जो स्टेट्स थे, दे वर रिवर्टेड टुवर्ड्स कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज। जब भी क्राइसिस रूनुमा होते हैं किसी भी एम्पायर में, तो क्या होता है, कंजर्वेटिव या फार राइट विंगर जो पार्टीज होती हैं, लीडर्स होते हैं, दे केम टू दी सरफेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के बाद दोबारा से यूरोप, खासकर ईस्टर्न यूरोप तो पूरा उसमें क्या कहें पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी, लेकिन जो मेन स्टेट्स थी लाइक जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है, दे वंस अगेन रिवर्टेड टुवर्ड्स कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। इक्वल ट्रीटीज, these were the various specters which were hunting the European continent. But the most intensive specter which was proliferating after World War I was the specter of communism. The specter of communism was proliferating and expanding in entire European continent. किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है? Raise your hands. When you open the book Communist Manifesto written by Karl Marx and his friend Engels, the very first line starts with, a spectre is hunting the continent of Europe. And to counter this spectre, brackets के अंदर communism, the whole Europe has come into an alliance to exorcise or to what, eliminate this communism from Europe, ठीक है। and this specter is the specter of communism, इसी से ही शुरू होती है, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ ये एक स्पेक्टर ही नहीं कर रही थी। as we all know, after the World War I, many specters, not just one specter, many specters started hunting the world in general and the continent of Europe in particular. All those specters which were hunting particularly the European continent were unemployment, social unrest, inflation. Again, after World War I, many specters started hunting Europe. So, after World War I, communism was proliferating to every nook and corner of European continents, and the people of Europe were afraid of the communism, ठीक है। and a new political ideology known as fascism was, यानी जो कम्युनिज्म फैल रहा था उसके रिएक्शन में एक और आइडियोलॉजी सामने आई जिसको हम क्या कहते हैं, फाशिज्म, समझ गए। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज फाशिज्म? If we look into this term fascism etymologically, its meaning is what? A bundle of sticks. Basically it is a Latin word, fascismo. The exact word is fascismo. It is an Latin word. Etymologically its meaning is a bundle of sticks, right? तो इसको कहते हैं फाशिज्म। इसके अलावा फाशिज्म से क्या मुराद है? फाशिज्म बिलीव इन सोशल हायरार्की,
It believes in social hierarchy. It believes in the survival of the fittest, right? It believes in the superiority of certain races. Yes, it is one of the ethnocentric, or it is a kind of xenophobic ideology. You are right. सही है? It believes in what? Racial superiority of certain classes and extermination of the inferior classes. This is the definition of fascism, right? तो अब फर्दर क्या होता है? What next? फाशिज्म स्टार्ट कहां से हुई बेसिकली? अब फाशिस्ट तो ये तीनों कंट्रीज हैं, एज यू ऑल नो, इवन स्पेन भी है. दैट वाज नॉट सो मच इन्फ्लुएंशियल, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया. बेसिकली fascism or the prelude of fascism was Italy. The epicenter of fascism was Italy. Fascism started in Italy from 1922 onward, right? So the leader of Italian fascism was Benito Mussolini. At its early age, Benito Mussolini was himself a socialist, but eventually he relinquished his previous socialist tendencies, ठीक है? And he became a leading fascist, Benito Mussolini. The name of that fascist party of Italy was what? National Fascist Party, right? It has more than 3 lakh members, this Italian Fascist Party, right? So what was the slogan of this Italian Fascist Party? Observe, fight and obey. This was the political slogan of Italian Fascist Party. Besides, Mussolini was also claiming to revive the glory and military power of ancient Rome, right? He was claiming to revive the glorious and military strength of the ancient Rome, right? This was the political motive of Italian Fascist Party. Interestingly, in 1932, Benito Mussolini wrote an article to the encyclopedia, right, in which he explains his version of fascism. As he says, above all, we don't believe in perpetual peace. We believe in what? War. We don't believe in the doctrine of pacifism. We believe in war. And according to Mussolini, war was a noble activity. War was a noble activity, right? So this was Italian Fascist Party, जिसको लीड कर रहा था Benito Mussolini. समझ गए? Good. Now come to the next. Mussolini came to the power after ouster of King Victor Emmanuel II. उसने जो इटालियन किंग था, ठीक है, विक्टर एमेनुअल II, ठीक है, उससे इक़्तिदार लिया, एंड ही बिकेम व्हाट? द लीडर. उसके अलावा फाशिज्म बिलीव्स इन व्हाट? डिक्टेटरशिप, ठीक है. इट बिलीव्स इन टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियन स्टेट, जिसमें क्रशिंग ऑफ ओपोनेंट से लेके एवरीथिंग होता है, राइट? तो अब जो नेक्स्ट लीडिंग जो फाशिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, दैट वाज इन जर्मनी, राइट? अब थोड़ा बैकग्राउंड देखें जर्मनी का. आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्या हुआ? क्रक्स में तो हमने देखा ना, इंटरवारियस में. अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखें कि जर्मनी के अंदर क्या हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. द फर्स्ट थिंग विच हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वाज the establishment of
Weimar government, Weimar government, Weimar, द वेमर गवर्नमेंट, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के अंदर जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई उसका नाम वेमर, राइट। बेसिकली दिस वेमर गवर्नमेंट वाज ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट, इट वाज ए रिपब्लिकन गवर्नमेंट, राइट। जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो विलियम टू था, काइजर ऑफ जर्मनी, ही फ्लेड टू नेदरलैंड्स, तो जर्मनी के अंदर ये एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की, ठीक है। तो उसका नाम था वेमर। लेकिन अब ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वेमर, जिसको हमने कहा वेमर, उसके दो अपोनेंट्स थे जर्मनी के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, द लेफ्ट विंगर्स एंड द राइट विंगर्स, जर्मन लेफ्ट विंगर्स एंड जर्मन राइट विंगर्स। जर्मन लेफ्ट विंगर मीन्स द जर्मन कम्युनिस्ट, they were against this Weimar government. According to them, this Weimar government was a puppet government which was established by Britain and its allies, right? और जो right wingers थे, the right wingers comprises of its military leadership, German military leadership, its leading ultra-nationalist, leading ultra-nationalists and racists, along with the industrialists as well. इन सबको कैटेगराइज किया गया है जर्मन राइट विंगर्स के अंदर, राइट। तो अब उनका इल्जाम ये था जर्मन राइट विंगर्स और लेफ्टिस्टों का, सॉरी नॉट लेफ्टिस्टों का, पर्टिकुलरली जो राइट विंगर्स थे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा रेसिस्ट और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, they believe that this Weimar government was facilitating the enemy of Germany after वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। Beside the left and right shared a common contempt for this Weimar government, right? तो अब ये क्या कहते थे, टेक्निकली their accusation on this Weimar government was that this Weimar government has stepped on the back of Germany by urging for peace, समझे। यानी उनका ये मानना था कि जब जंग हो रही थी तो जर्मनी वाज विनिंग द वॉर, इसको प्रोपेगेंडा कह लें या कुछ कह लें, एज वी ऑल नो जर्मन फोर्सेस एंडेड वर्ल्ड वॉर 1 इन ऑक्यूपेशन ऑफ द एनिमी टेरिटरी। जब जर्मन फौजियों ने सरेंडर किया तो कहाँ पे किया था, दे वर एट द मिडल ऑफ फ्रांस, ट्रेंचेस के अंदर थे वो, ठीक है। तो अब ये चीज जर्मन फोर्सेस या अल्ट्रा नेशनल सोशलिस्टों को हजम नहीं हो रही कि हम जीत रहे थे, लेकिन जो वेमर गवर्नमेंट या वेमर गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे विच एंडेड द वॉर, ठीक है, जिन्होंने पीस ट्रीटी साइन की, वर्साई की, उन्होंने क्या किया, स्टेप किया, यानी पीठ पे छुरा घोंपा जर्मन आर्मी की। This was a common perception in the right wingers. That's why they used to abhor this Weimar government. ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या होता है इसके बाद, ये तो थी ओवरऑल सिचुएशन, और जर्मनी के अंदर जो सिचुएशन थी, चाहे इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, वो बहुत खराब थी, वी हैव डिस्कस अर्लियर, राइट। अब क्या होता है इस सिचुएशन में, एक वीक सी गवर्नमेंट है जर्मनी के अंदर, हालात बहुत खराब हैं और उस गवर्नमेंट के मुखालिफिन भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट विंगर्स की शक्ल में, लेफ्ट विंगर्स की शक्ल में। तो अब क्या होता है, टुडेस आवर सेकंड लास्ट टॉपिक, इसी से जुड़ा हुआ, परेशान ना हो। सो व्हाट नेक्स्ट, हिटलर, हिटलर एंड नाजी पार्टी। जैसे हमने देखा इटली के अंदर कैसे मुसोलिनी ने फासिज्म की बुनियाद रखी, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन किया, अल्टीमेटली
एमेनुअल 2 से गवर्नमेंट ली, ठीक है, ऑल दैट। तो अब इसी तरह जर्मनी के अंदर क्या होता है, जर्मनी में भी इसी तरह की एक फाशिस्ट आइडियालॉजी है, वो डे बाय डे स्ट्रांग होना शुरू हुई, ठीक है, विच बिलीव्स इन व्हाट, रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ जर्मन्स एंड एक्सटर्मिनेशन ऑफ द वीक क्लासेस। अब हम वो सारी चीजें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्सप्लोर एडोल्फ हिटलर। ये एडोल्फ हिटलर का थोड़ा हम बैकग्राउंड देखते हैं। हु वाज ही? एडोल्फ हिटलर, he was born in Austria. He was born in Austria, right? And at the age of 16, I think, he left his school. He left his school for good, right? Then उसके बाद he tried his luck as an artist. ये आर्टिस्ट बनना चाहता, ठीक है, ये आर्टिस्ट या आर्ट में बड़ा इसका इंटरेस्ट था, आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन कई सालों की दर बदर के बाद ये उस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सका। एंड विद इन दैट टाइम वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड एंड ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ फॉर जर्मन आर्मी, और ही वॉलंटरली ज्वाइंड द जर्मन फोर्सेस एज ए सोल्जर। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 हिटलर वॉज ट्वाइस अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। 2 दफा बहादुरी के लिए उसको तमगे मिले, ठीक है, हिटलर को वर्ल्ड वॉर 1 ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी। जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो गई, उसके बाद ये भी अब जर्मनी में है से रिटायर्ड सोल्जर, ठीक है। तो आई सेड कि तब वेमर गवर्नमेंट या द रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाज वर्किंग इन जर्मनी। तो अब उसके 2 ओपोनेंट्स थे, द लेफ्ट विंगर्स एंड द राइट विंगर्स। राइट विंगर्स मींस अल्ट्रा नेशनलिस्ट एंड रेसिस्ट, ठीक है। सो हिटलर ज्वाइंड राइट विंगर्स, ठीक है। ही ज्वाइंड ए पार्टी या ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव इन अल्ट्रा रेसिज्म एंड नेशनलिज्म, ठीक है। अल्टीमेटली ही नेम्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन एज व्हाट? जर्मन, नो, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। German National Socialist Worker Party. The name of his political party was German National Socialist Worker Party, right? Or in short term it is known as what? Nazi Party. German Socialist Worker Party is also known as the Nazi Party, means the party of Hitler. As we maybe as you all know, Hitler was one of the great orators. He was a great public speaker, right? He was known for his great oratory. ठीक है, his ringing speeches were very famous. ठीक है, soon, within no time, he gained popularity among the masses. ठीक है, अब ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मनी में, वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स चला रहा है, ठीक है। अब इसने जस्ट 2 चीजें की, हिटलर ने क्या? जस्ट 2 चीजें की। 1, पहली चीज ये की कि एक तो इसके पास गॉड गिफ्टेड ओरेटरी थी, दूसरा इसने एक पॉलिटिकल स्लोगन रेस किया, या इसका जो पार्टी का मेन पॉलिटिकल स्लोगन था, दैट वाज राइटिंग द रॉन्ग्स। राइटिंग द रॉन्ग्स, राइटिंग द रॉन्ग्स से क्या मुराद है? द रॉन्ग्स imposed on German people by the Treaty of Versailles. He publicly dedicated himself to righting the wrongs done to the German people by Treaty of Versailles. This ultimately became the slogan of Hitler or Nazis, righting the wrongs. ठीक है, one thing. उसके अलावा क्या होता है? When he got popularity, after some time in 1923, Hitler and his Nazi party tried to overthrow the government of Bavaria.
Bavaria is a German state, right? They tried to overthrow the government of Bavaria. और इसमें ये नाकाम रहे हिटलर और उसके जो नाजीज थे. तो एंड एज ए रिजल्ट हिटलर वाज imprisoned. He was thrown to jail. Up in jail, Hitler wrote his famous book. What? My Camp, Man Camp. Man Camp, which means my struggle, right? This is the book of Hitler himself, which he wrote in jail, right? Of the theme of this book, there are two themes of this book, or this book emphasizes on two things. What? Ultra racism, and Hitler believes that German people are a master race. They represent a master race, right? They descended from, as he says, the Germans are descendants of the Aryans. ठीक है, they have Aryan blood, right? और उसके अलावा फर्दर क्या कहता अपनी बुक में? He suggests that जो inferior या वीकर जो रेसेस हैं जर्मनी के अंदर, they had weakened Germany. Which are these inferior races according to Hitler? Jews, Slavs, Gypsies and others, Poles and others. ठीक है. अब इसका ये मानना है कि ये जो वीकर रेसेस हैं या इंफीरियर रेसेस हैं, उन्होंने जर्मनी को वीक किया. ठीक है. तो अब उसके बाद क्या होता है? अल्टीमेटली जेल से ये रिहा होते हैं हिटलर. ठीक है. एंड विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, he became the chancellor of Germany in 1933. 1933, he became chancellor of Germany, right? After becoming the chancellor of Germany in a controversial episode, ठीक है, he became chancellor in a controversial way. इसको आप explore करें खुद से, right? So after becoming chancellor, he converted Germany into a what? Totalitarian state. ठीक है. उसने अपना जो फाशिस्ट नजरिया था उसको फुली इंड्रोस किया या अप्लाई किया. ठीक है. अब इसका जो पहला शिकार हुआ वो तबका कौन सा था? ज्यूस थे. द हेवीएस्ट blows of Nazis were aimed at the German Jews. ठीक है. And after 1933, anti-Semitism became the official what? Policy of the Nazi government. ठीक है. तब से उनकी एक्सटर्मिनेशन शुरू हो गई. अब ये इसको इतना बिलीफ था जर्मन मास्टर रेस पे. एक इवेंट आपसे शेयर करूं. वर्ल्ड ओलंपिक्स 1936 जो हैं वो बर्लिन में हो रहे थे. 1936 को वर्ल्ड ओलंपिक्स. ठीक है. तो अब उसमें हिटलर चाहता था कि जो जर्मन जो एथलीट्स हैं, ठीक है, वो हर इवेंट को विन करें और जो आर्यन सुपीरियरिटी है उसको प्रूफ करें. ठीक है. ये बड़ा बेताब था कि तमाम जो जर्मन एथलीट्स हैं वो इसको जीतें. लेकिन क्या होता है इस 1936 ओलंपिक्स में जो बर्लिन में हुए, द चैंपियन और द हीरो ऑफ दिस 1936 ओलंपिक वाज हु? ए ब्लैक अमेरिकन. हिज नेम वाज जेसी ओन्स. J.C. Owens, right? This person, J.C. Owens, got four gold medals along with, as well as he established 3 world records as well. ठीक है. जिसकी वजह से हिटलर बड़े डिसहार्ट हुए. ठीक है. मजीद उनको तेज आया. तो अल्टीमेटली क्या होता है? बस लास्ट पैराग्राफ है.
1936 में स्पेन के अंदर एक सिविल वार होती है, जिसको क्या कहते हैं, स्पेनिश सिविल वार कहते हैं, 1936। इस स्पेनिश सिविल वार में नेशनलिस्ट और जर्मन फाशिस्ट, सॉरी इटालियन फाशिस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। एंड द लीडिंग इटालियन सॉरी जर्मन सॉरी स्पेनिश फाशिस्ट लीडर वाज फ्रेंकिसो फ्रेंको। फ्रेंकिसो फ्रेंको वाज द फाशिस्ट लीडर ऑफ स्पेन, ठीक है। नाउ हिटलर एंड मुसोलिनी बोथ डिसाइडेड टू सपोर्ट दिस फ्रेंकोस आर्मीज, ठीक है। इन्होंने उसको सपोर्ट किया स्पेनिश सिविल वार 1936 में। और इसी जंग के दौरान हिटलर और मुसोलिनी दे बिकेम फ्रेंड्स एंड दे साइन ए मिलिट्री पैक्ट नोन एज द एक्सिस पावर, जिसको या एक्सिस पावर्स कहते हैं। एंड लेटर ऑन जर्मनी आल्सो सॉरी जापान आल्सो ज्वाइन दिस एक्सिस ब्लॉक और पावर, ठीक है। लास्ट थिंग नाउ जापान, जस्ट 3 चीजें देखेंगे जापान में, ठीक है। जापानीज वर्जन ऑफ फाशिज्म, हम टेक्निकली ये फाशिज्म की वर्जन्स देख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, जापान वाज एडिंग और इट वाज हेल्पिंग द ब्रिटिश ब्लॉक, एज वी ऑल नो, राइट। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जापान कॉलोनीज क्लेम कर रहा था, या वो कह रहा था कि मुझे एशिया में ऐसे एम्पायर एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन उसको वो ड्यू रिगार्ड नहीं मिला। इवन इटली जो था वो भी मतलब विक्टोरिया साइड पे था वर्ल्ड वॉर 1 में, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी वो ड्यू रिस्पेक्ट या स्पेस नहीं मिली, ठीक है। तो ये भी आगे दोबारा से जर्मन ब्लॉक में शामिल हो गया, ठीक है। जो जर्मन फाशिज्म है, सॉरी जापानीज फाशिज्म है, उसको मोटिवेट करने वाली जो आइडियोलॉजी है उसको कहते हैं शोवा आइडियोलॉजी। शोवा, शोवा नेशनलिज्म और शोवा आइडियोलॉजी, ठीक है। अब इंपीरियल जापान को जो लीड कर रहा था, उनके इंपरर का नाम था हिरोहितो। हिरोहितो वाज द इंपरर ऑफ जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। एंड द नेम ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर वाज सुजुकी केंटेरो। सुजुकी केंटेरो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, इंपीरियल जापान, राइट। तो अब जापान जो है वो भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एक एग्रेसिव पावर बन गई थी। उसने भी एक्सपेंशनिज्म शुरू की थी, ईस्ट एशिया में उसने अपनी एक्सपेंशनिज्म शुरू की हुई थी, ठीक है। तो